If you have the ability to go talk to a girl and approach her, look her in the eye and have a conversation, भाई तुम 99.99% जनता से अलग हो गए हो एकदम से। लड़कियों के पास हजारों डीएम्स आ जाएं, इतने फॉलोअर आ जाएं, बट वो जो असली में जब बात हो जाती है ना, देन तुम सारी चीजें हटा देते हो। That separates you from everyone else, dude. There's a very fine line between teasing and offending someone. ठीक है, वो लाइन ढूंढना बहुत डिफरेंट है। That's art. और एकदम क्लियरली नहीं बोला कि ये चीज बेकार है, बोलना ये मेरे को समझ नहीं आ रही क्या है। ठीक है, आई हेट योर शर्ट, अ बिट पोलराइजिंग, बट इज लाइक आई एम नॉट श्योर व्हाट आई फील अबाउट दैट शर्ट। अभी जैसे एक हमारा कॉन्सेप्ट है पिकअप का, assuming familiarity. Yo, what is up my friends? Welcome to another episode of Dostcast. मेरा नाम है विनम्र कसाना। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में हमारे मित्र क्षितिज सरावत के साथ, जिनका नाम है आयरन मैन लाइफस्टाइल। एंड्रू टेट के ज़माने के अंदर जहाँ पे सारे के सारे लड़के कमेंट्स में गैदर होते हैं और बोलते हैं भाई साहब आप ठीक कह रहे हो, हाउ डिड वी गेट हियर? वी गॉट हियर बिकॉज क्लियरली या तो it became too dangerous in your mind to go and approach the girl of your dreams, or you became such a massive simp, or culture was oppressive. बहुत सारे कारण हो सकते हैं. Whatever it is, you've ended up here because either you follow me or you follow क्षितिज. And clearly, let's be honest, dating in 2023 is not tough. It's just so weird because एक तो कोविड आ गया, तो 3 साल आप घर पे रहे. You were never taught how to approach someone from the opposite sex and say hi and state that you like them. And if you're older, even explicitly communicate that you have a sexual intention. Even go that step. ये इंडियन सोसाइटी में इतना ज़्यादा टैबू है, इतना ज़्यादा हम छुपा के रखते हैं. It's so repressed that we've got a generation of sexless young men, a generation of young men with no partners roaming around, writing in the comments कि भाई men of culture gather, simping कर रहे दबा के बंदे. No one is getting any romantic partners. All the girls are disappointed कि यार कब आएगा हमारा वो top tier बंदा. Or they have too many choices. They're like, what the fuck? Where are all the good guys? The good guys are all getting simped out daily. ठीक है? So क्षितिज has been solving this problem for young men for a long time. He's arguably, one of the best dating coaches in India. And बाहर तो ये चल ही रहा है. But thanks to people like Andrew Tate, this conversation has now entered the mainstream. इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के अंदर क्षितिज और मैं बात करते हैं how most guys are afraid to approach women and ask them out, and vice versa. औरतें क्या कर सकती हैं to approach guys that they like. How do you do it in a step-by-step manner? How do you make sure that you're making the other person feel comfortable? और तुम कैसे ensure कर सकते हो that your social and dating life is at a place जो तुम्हें Instagram पे so called बंदे दिखा रहे होते हैं yacht what, like I think it can actually happen. Or it can happen on a spectrum that is okay for you, is valid for you. वो सब हो सकता है. It's just a matter of taking massive action and fulfilling your dreams. It's simply re-socializing yourself to doing something that is primal nature. हमारे ancestors, they would just go and meet people, right? Or ask friends or whatever. So हम ये सब बातें करने वाले हैं इस podcast के अंदर. It's a little NSFW because a lot of you out there जो बड़े woke हैं, जिनको बड़ा बुरा लगता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो organically होना चाहिए. नहीं हो रहा organically. Sadly, that is the reality, right? So that is what people like क्षितिज are here to help you out. A lot of you are under-socialized. This is a podcast for you. Let this podcast be an awakening, a wake-up call to take your dating life into your own hands and, make it fun, make it light. To approach and to be romantic and to fall in love and to couple is an instinct as old as the human race itself. ठीक है? बहुत बड़ी बात बोल दी है टॉप टाइप इंग्लिश के अंदर, तो इसी बात पे सब्सक्राइब दबाओ क्योंकि हम लोग जा रहे हैं दोस्तकास्ट टू द मून 1 million subs in December, my friends. बहुत घूम लिया हूं मैं स्पेन में, बहुत मजे कर लिए. Now it is time to put pedal to the metal and take the podcast to the moon. And now the episode with my friend क्षितिज सरावत begins in 3, 2, 1. I think अगर कोई इंसान borderline incel है उनको इंसेल होता है इनवॉलंटरी सेलिब्रेट, जो बोलते हैं भाई हमें वैसे ही कुछ नहीं मिल रहा है. हाँ. तो हम अपनी मर्जी से ही कुछ नहीं करेंगे. मतलब हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम लड़कियों से दूर ही रहेंगे. अगर उनको डेलिबरेटली सोशलाइज करा दिया जाए थ्रू द मींस ऑफ एक्चुअली हैविंग देम इन social situations where there are women and where they can introduce themselves, no matter how shyly, no matter how badly, no matter how in the most unsocialized manner वो करते हैं, it's gonna cure them of that. मुझे ऐसा लगता है. जॉर्डन पीटरसन ने भी बोला था कि अगर आप अरेंज मैरिज करोगे तो इंसेल होना छोड़ जाएंगे. ठीक है?
मतलब अरेंज मैरिज होगी तो इंसेल नहीं रहेंगे। इंसेल नहीं रहेंगे। अच्छा, तो ही सेइंग जो अरेंज मैरिज के इंडिया में कल्चर है वो बहुत बेटर है। या बिकॉज ही सेइंग कि अब जो इंसान दैट्स ट्रू भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। तो अब जैसे अगर इंडिया में अरेंज मैरिज नहीं होती और लोग अप्रोच कर नहीं रहे हैं तो भाई दे वुड बी सिंगल ऑल देयर लाइफ और वो इंसेल बन जाते वो this तो। country would be ravaged by Fuck, bro. like all these guys, right? So it in a way जितना भी good. आदमी ऐसे you know hyper deviant होता है ना, incel टाइप का, वो शादी करने के बाद he understands the company of women, the touch of women, वो feminine presence, आदमी हील हो ही जाता है। हील भी ना हो तो एटलीस्ट उस लेवल पे आ जाता है कि वो टॉलरेबल सोसाइटी के अंदर है। आई एग्री भाई, ये तो बहुत ही सही है भाई। So in that sense, I think कि जो बोलते हैं कि if you can teach someone who's anyway on the verge of committing crimes or like completely Yeah. losing hope from society, if you can teach them that there is a way in which you can be redeemed, and maybe it's like it's not just approaching the other sex, it's a bunch of things, self-acceptance therapy, जैसे कुत्तों को सोशलाइज कराते हैं क्योंकि कुत्ते अदरवाइज अग्रेसिव हो जाते हैं। मेरा कुत्ता अग्रेसिव है, सोशलाइज नहीं है, मेट कराना ही होता है उन्हें। मेट कराना होता है तो भाई वो नहीं कर सकता मेट, मतलब मेरे इससे एविडेंट नहीं है मेरा कुत्ता इतना अग्रेसिव है, ही कांट मेट, राइट? वो बंदी भाग जाती है बिकॉज वो इतना टेरिटोरियल और अग्रेसिव है, बिकॉज हमने उसको प्रॉपरली सही एज पे सोशलाइज नहीं कराया और कुत्तों के साथ, राइट? द रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ अस, राइट? डॉग्स 100% भाई। तो यार हम तो अपना काम कर ही रहे हैं एंड अरेंज मैरिज तो हो ही रही है, सीमा जी अपना काम कर रही हैं मैच मेकिंग करा के और हम भी कर रहे हैं, बट आई थिंक इंडिया तो फिर भाई काफ़ी बेटर है यार। ये साले गोरों से तो गधे हैं भाई, ये तो व्हाट द फक डूड। तो अब जो सिचुएशन है वो ये है कि एक इंडिया जहाँ पे सोशल स्किल्स नहीं होती थी लोगों को और बाहर जाके यू स्टेड इन द स्टेट्स, देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ अरे यार ये तो इंडियन है तो बोरिंग है, ब्राउन करी व्हाटएवर जो भी कहते हैं, एंड इट्स नॉट लाइक दे गेट द हॉटेस्ट वाइट गर्ल्स स्टे अवे फ्रॉम इंडियंस मोस्टली, और वो अलग ही अपनी झुंड बना के रहते हैं। और वहाँ पे ऑल द नेटिव पीपल यूरोप के एंड यूएस वगैरह के व्हेन यू गो आउट वो अपने साथ रहते हैं, देयर मच मोर सोशल बचपन से ही। बट अब वो सीन फ्लिप हो रहा है भाई। तूने बताया कि वो हैं जूमर्स हैं जो वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो वो अब कंस्ट्रेंट में आ रहे हैं अपना, उनके पास अरेंज मैरिज नहीं है कि अप्रोच नहीं कर रहे हैं, तो फिर भाई बहन जो शादी कैसे होगी, ब्याह कैसे होएगा, वो नहीं हो रहा है उनका भी। और कंपेयर दैट टू इंडिया, अरेंज मैरिज फुल पावर है, डिवोर्स रेट 1% है, और हम जैसे लोग भी आ गए हैं कि साला तुम अरेंज मैरिज भी करोगे, वो भी करोगे, और अब तुम अप्रोच भी करोगे। तो ये जो जब तुम यूएस जाओगे, यू आर नॉट गोना गो देयर एंड ओनली look at girls class resident, yeah, like this is not for me, you're not there to participate and be like, यार बहुत सारे clients हैं जो यूएस जाते हैं and they only talk to Indian girls because they don't feel enough, वो colonial hangover बोल दो, कुछ भी बोल, they don't feel that like they're good enough to talk to the whites or other races, right? and मैं बोलता हूँ भाई we're not here to fucking participate, we're here to take over। तो भाई तुम्हें जाना है, you're gonna look at the 10, कोई भी हो कैसे भी हो, तुम आए हो बहन, जो तुम्हें वैसे ही बात करनी है। तो जब भी मैं गोरों से भी मिलता हूँ ना भाई, मैं फुल पावर भाई, आई एम द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन, आई एम द बेस्ट कंट्री एवर, मैं जो ऐसे वैसे, तो फुल पावर लगता हूँ यार मैं तो एकदम। आई नेवर टेक लाइक अ सेकंड क्लास सिटीजन वाला चीज़ मेरे दिमाग में। और अगर कभी लगे भी, कभी मेरे को लगता है कि यार ये बंदे के सामने मेरा ना उतनी वो नहीं है मेरी, कि मतलब ये थोड़ा बेटर लग रहा है, इसकी बॉडी बेटर, बहन जो बात अच्छे से कर रहा है, मेरा एक्सेंट नहीं समझ आएगा, तो आई डबल डाउन ऑन इट। मैं कहा इसके साथ तो मैं compete करूंगा ही करूंगा साले के साथ, यहाँ तो बनता ही है। सो दैट्स व्हाट आई फील हमारे देश में ज़्यादा होना चाहिए भाई। हमारे में एक कंपैरेटिव इंस्टिंक्ट हम एकेडमिक्स में गांड मराते हैं। हाँ, कंपैरेटिव 98% और लाइक वाइफ इज स्टिल लुकिंग फॉर वाइफ, लाइक व्हाट द फक ब्रो। क्यों भाई? हाँ, माँ की चूत भाई, सोशलाइज भी करेंगे, सोशल स्किल्स में भी एकदम टॉप नॉच पे है भाई। ले जाना है भाई मेरे तो मतलब एकदम सबको सिखाएंगे भाई, सब पैंचो अप्रोच करते घूमेंगे। मेरे को तो इतना अच्छा लगता है ना कि लाइक एक मेरे को अच्छी तरह याद है वो वक्त जब मैं यूएस से गया और मैंने वो एक्सपीरियंस करा कि यार ये तो गोरे हैं, इनके जैसे एक्सेंट में बात करनी है वो, और वो अब वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस is simply like choosing a cuisine. It's not like ये ऊपर है नीचे है ऐसे वैसे है, but mentally it takes a while to get there. cuisine भी तो इंडियन ही बेस्ट है, तुम कुछ भी चूज कर लो। हाँ मतलब ठीक, bro, I preferred Mexican cuisine, मुझे पसंद है। सेम है, मैक्सिकन इंडियन सिमिलर है, मतलब सिमिलर है, एक ही गांव के हैं। हाँ मेरे को पसंद है राजमा चावल में चिकन गुआकामोली केसो। हाँ अब तूने राजमा चावल बोला ना, तूने नहीं बोला ना बरीटो बोल। नहीं वो मैं रिलेट मैं भी तो क्रिएटर हूँ यार, मुझे पता है क्या बोलना होता है। नहीं बट एनीवे भाई, मतलब इवन फॉर मी लाइक इंडियन इज नंबर 1, मैक्सिकन इज नंबर 2 एंड थर्ड इज एशियन चाइनीज फूड। ऑफ कोर्स दैट्स टॉप 3 भाई।
when it comes to chalo theek hai, let's go back to the fundamentals, right? I have suddenly figured out watch this podcast if I've not tuned out by now कि ये क्या बातें कर रहे हैं भाई, मेरे को तो अपनी जॉब वॉब करनी है, मैं वही कह रहा था, ये साले ट्यून आउट कर देंगे. The kind of things that we talk about and when we start off ना, people get tuned out, dude. तो कि ऐसे कर लेंगे वैसे, अबे नहीं, how does it matter? हमने लास्ट टाइम इनर चाइल्ड हीलिंग करी थी, कई बच्चों ने मेरे को रिपोर्ट करा हमारे इनर चाइल्ड हील हो गए, तो बात करके बात सुन के I think the problem is what you do, and kudos to you, you know, I've known you for I think मेरे को 3-4 साल तो हो गए तेरे को जाने में. हाँ भाई. कि कंसिस्टेंटली डबल डाउन करना एक ऐसी चीज के ऊपर जिसके ऊपर ना अभी भी मतलब इट्स नॉट लाइक सेलिब्रेटेड, राइट? लाइक ओके ब्रो, लाइक तू बोल रहा था ना मैं बिजनेस कोच हूँ. जब बिजनेस कोचेस के लिए एम्पोरियो और मानी वाले कपड़े आते हैं, क्या कहते हैं लोग, उनको मर्सिडीज में लेने जाते हैं. सोसाइटी ने बोला है दिस पर्सन, दिस प्रोफेशन A1, राइट? And kudos to you for continuing to build on something when there is constant society भी आप पे वो कर रही है, क्या कहते हैं, रिप्रेस कर रही है आपको, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, माँ बाप की सुनो, माँ बाप की सुनो, माँ बाप की सुनो, माँ बाप की सुनो, माँ बाप की सुनो. I wanted to take a different note and talk about, पहले भी you were making your dating content, virtually every single kind of content, and usually making content for नई audiences, जो मतलब कि इस चीज को समझें, so making it palatable. Then some switch happened. तो मैं जानना चाह रहा था कि was it because this whole conversation around dating, openly approaching people opened up, उस वजह से you saw the growth on YouTube, or did you just change your strategy? Strategy है भाई, content strategy बस. We just learned more. You don't think it's because of a consequence of the time that we're in? नहीं यार, not at all. बिल्कुल ही नहीं भाई, because अगर वो होता तो सबके dating channel boom होते इंडिया में. But एक ही बंदे का boom हुआ है, मेरा. क्यों हुआ, बाकियों के क्यों नहीं? वो अभी भी वहीं अटके हुए हैं. बट व्हाई इज इट दैट वी वर द वन दैट सॉ ग्रोथ? इट्स ओनली कंटेंट भाई. पहले बस इंग्लिश में बात करता था, हिंदी में बात करनी स्टार्ट करी, एसईओ वाला कंटेंट बनाना स्टार्ट करा, ग्रोथ हुई. फिर उसके बाद वी स्टार्टेड लुकिंग एट स्टोरीज इन कंटेंट. हाउ कैन वी क्रिएट अ स्टोरी अराउंड समथिंग एंड देन मेक, जैसे पॉडकास्ट के लिए भी मैं तुझे कह रहा था, हम लंदन में हैं, हमें आउटडोर करना चाहिए, हाइड पार्क के बीच में टेबल लेके जाते हैं, वहां बैठते हैं, बिकॉज दैट इज अ स्टोरी. दैट्स अ वेरी गुड पीस ऑफ कंटेंट भाई लंदन के लिए. ये घर तो कहीं पे भी हो सकता है ना, अगर ये मैप नहीं दिख रहा है तो, ये दिख रहा है तो दिखेगा, ये लंदन ट्यूब का मैप है, बट ये घर कहीं पे भी हो सकता है, समझ रहा है? सही बात है. तो इट्स अबाउट द स्ट्रैटेजी दैट वी चेंज, इट्स अबाउट द एफर्ट दैट वी पुट इनटू इट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि भाई कोई व्यूअर जब देख रहा है तो वो कैसे देखेगा, उसको क्या अच्छा लगेगा, और उसको उसके लिए कैसे बनाए हम, रादर देन मेरे लिए कैसे बनाऊं मैं. Hence वो सिनेरियोस जहां पे मिनी स्किट्स चल रही हैं, फॉर एग्जांपल मिनी स्किट्स चल रही हैं. और इसमें पहले ना मैंने पिकअप सीखा था, तो पिकअप वाले ही कंटेंट स्टाइल, सेम आरएसडी स्टाइल का कॉपी हो रहा था. बट अब हम गए हैं अलग फिल्म मेकिंग में, स्किट्स में, कि हम कैसे नॉर्मल बना सकते हैं. नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट पिकअप, नाउ इट्स लाइक डेटिंग एंड रिलेशनशिप्स, इट्स गॉन अप. इट्स लाइक नॉर्मल. एक बंदे को मैं सोचता हूँ, एक बंदे को क्या चल रहा होगा दिमाग में, उसके चल रहा होगा कि यार मेरी क्लास में जो नेहा साइड में बैठी है उससे बात कैसे करूं, तो वो बनाऊंगा. और अर्लियर हमारा था व्हेन यू आर एट अ क्लब and you see this hot girl surrounded by 3 guys, how do you open her? It's very different. वो reality तुझे देखनी है, but असली में नहीं हो रहा ना तेरे साथ. But it's so niche, no? It's very niche. इंडिया के true dating needs को मैं मीट भी नहीं कर रहा. हाँ, तो हमने टैम बड़ा कर दिया. हमने हाय टैम, rather than looking at कि बस पिकअप जो इतनी सी नीश है, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमने देखे इंडिया में प्रॉब्लम्स क्या हैं, और वो प्रॉब्लम्स को एक अच्छी तरीके से पैकेज करके, स्टोरी डाल के, एंगेजमेंट देख के, अंडरस्टैंडिंग फिल्म मेकिंग एंड एडिटर टीम सिस्टम्स डाल के, एक्टर्स ला के, स्किट्स डाल के, और बेटर करके हमने करने लगे. तेरे मेंटल कुछ पैराडाइम्स थे, क्योंकि ऐसा होता है, लाइक ऑफन वी होल्ड आवर डार्लिंग्स क्लोज टू आवर चेस्ट, दिस इज योर आर्ट, राइट, इन अ लॉट ऑफ वेज, देयर इज अ सर्टेन वे इन व्हिच यू डू थिंग्स, एक पनाश है. उस सब को ओवरकम करके बोलना, किसी तीसरे बंदे की एडवाइस सुनना, या फिर ये देखना कि यार मार्केट में तो ऐसा चलता है, ये बड़ी मुश्किल चीज होती है, राइट? बिकॉज़ सम मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी स्टैंड इन आवर ओन ग्रोथ, राइट? सो तो अर्लियर ना, when I was starting out, I was like, I'm never going to make videos like 5 things to do to talk to a girl. I'm like, ये क्या चुतिया है भाई, हम आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट इन डेप्थ में समझाएंगे, and that's what I did शुरू में. But then when we switched to that 5 tips thing, और उसको हमने थोड़ा अच्छे से बताया. The point is, अगर तुम गूगल करोगे ना, how to talk to a girl, विकी हाउ आता है सबसे पहले, और विकी हाउ पे गंद आता है, wait for her to smile, make eye contact, ये आता है. चैट जीपीटी भी कर लो, इतनी गंदी डेटिंग एडवाइस है ना वहां पे. सो नाउ वी अंडरस्टूड, हमें पैकेजिंग विकी हाउ वाली डाल देते हैं, लेकिन अंदर
जो ज्ञान मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा आपको, ना चैट जीपीटी मिलेगा Very interesting. ना कहीं और मिलेगा। तो हमने पैकेजिंग बाहर से वो कर दी कि आप क्लिक मारो, बट अंदर आप बोलो भाई ये बंदा कुछ और ही है। It's इट्स almost वेरी like फ्रेश। I can open it in a metro, in a classroom without calling it NSFW content. ट्रू, यस, एंड यू कैन बी लाइक हाँ ये ऐसा है, और उसके अंदर जो बात पता, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ वैल्यू, अनलाइक दैट वो वाला जो विकी हाउ वाला कंटेंट होता है, यू फाइंड ट्रेमेंडस वैल्यू। तो दैट्स व्हाट वी चेंज्ड, वी गिव द सेम थिंग इन अ बेटर वे। अभी जैसे एक हमारा कॉन्सेप्ट है पिकअप का, assuming familiarity, which is talk to a person as if you already know him. So for an example, if usually जब हम किसी को approach करते हैं as a stranger, right? And if I'm new, I'm going to be like, hi, excuse me, hello, is this a good time to talk? I actually had a question. I really like that shirt and I think you're cute as well. What's your name? Is it fine if I talk to you for 2 minutes? Now दिख रहा है कि हम दोनों strangers हैं, बट दोस्त लोग कैसे बात करते हैं? So you assume familiarity कि आप पहले से ही बंदे को जानते हो और आप वैसे अप्रोच करते हो। So you approach them being like, hi, excuse me, hello, hi, I saw that shirt here, it's so fucking amazing. What's your name? Nice to meet you, my name is Kshitij. Same चीज Your करी है। tone says everything. Tone says everything, but I'm also smiling. I'm like, यार, yo, what's up, man? अगर if you see me in person, you're like, bro, Kshitij, nice t-shirt. I'm like, यार, Viram, bro, nice t-shirt, अबे man. तू वॉक करके आ रहा था, अच्छा मेरे को लगा कि क्षितिज तो मैंने ये अज्यूम करा था ये पक्का कुछ लार्जर देन लाइफ चीज पक्का करेगा ही करेगा, और मैं कर रहा था क्या मैं कोई लो वाइब्रेशन स्टेट पे तो नहीं, क्योंकि क्षितिज आएगा तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ मेरे को ओवर एक्टिवेट करेगा एक्सट्रोवर्टेड तरीके से। ठीक है, अब मैं कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ, मैंने कहा चल ठीक है, मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं अच्छी जगह है एकदम पे, उधर से आवाज आती है। मैं जो कहीं ऐसा भी नहीं है कि कई ब्रिटिश लोग चल रहे हैं और कैफे में भी लोग थोड़ी बात कर रहे हैं, मैं जो उधर से आवाज आती है गुजर जाट का नाम रहेगा, जो इतनी दूर स्ट्रीट से आदमी करके आ रहा है, बट इट इज अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि दोस्ती है, बट बार-बार उसको रीअफर्म करना उसी फैमिलियरिटी से। नहीं तो बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं जो 10 साल से दोस्त होंगे फिर भी दोबारा से मिलेंगे, और ब्रो क्या चल रहा है, व्हाट, और ब्रो क्या हाल है भाई। गुजर जाट लंदन टेक ओवर करने आ चुके हैं तो सबको पता होना चाहिए, तो हमने वो स्ट्रीट को बता दिया है। अब ये गली हमारी बन गई है, जाट गुजर एकता स्ट्रीट है इसका नाम अब। ठीक है, इसका नाम बदल रहे हैं हम, क्राइज इन प्रिंस फिलिप। तो मतलब इट्स अ टेस्टमेंट टू द फैक्ट कि दिस इज समथिंग आई हैव सीन विद यू कंसिस्टेंटली। इनफैक्ट जब हम कभी किसी इवेंट्स वगैरह पे भी गए हैं तो मैंने देखा तू लोगों से ऐसी बात करता है यूजुअली दैट यू नो देम वेरी वेल, राइट? I try to because it makes you very approachable, right? In the other hand, and I always smile. एक चीज और करता हूँ मैं, anytime now that people are recognizing me, I try to ask their name every time. Bye बोलते हुए मैं कहता हूँ what was your name? फिर मैं भूल जाता हूँ कई बार, but at least the person feels like कि साला he gives a fuck. And when my girlfriend is with me, कोई बंदा बोलता है hello man, मैं कहता hey man, what's up? Okay तो bro I watch your videos. मैं good shit bro, कैसे चल रहा है? एक सेकंड, हाँ। And फिर तो मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है who's your friend? मैं कहता नहीं, who's a fan? Likes the videos. Do they try to approach your girlfriend because you've taught them? नहीं, they've approached my sister. अच्छा, मेरी बहन को उन्होंने पहले अप्रोच करा है। Like when my girlfriend is with me, then तो नहीं करते हो, मेरे से ही बात करते हैं। इतना तो रिस्पेक्ट है। एक बंदा था वो मेरे को हाय हेलो करा वगैरह, फिर बोलता अच्छा आप तो आस्था हो ना, आप उस हॉस्पिटल में काम करते हो ना, तो शी इज लाइक या। फिर जो भी बात हुई, फिर बाद में कहता ओके बाय ब्रो बाय, फिर कहता बाय आस्था, फिर जाते हुए कहता आस्था एक्चुअली आई लाइक यू, जाते हुए बाय द वे आई लाइक यू। मैं कह ये क्या कर गया यार, मैं कह क्या कर गया यार। एंड मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा क्योंकि बंदे ने कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करी, कहता भाई मैं भी जाट हूँ आप भी जाट हो, तो मेरे को लगा यार ये तो अच्छा नहीं करा, क्यों कर भाई ने आपने यार, नहीं या आई थिंक क्यों करा, मतलब इट्स नॉट, आई एम नॉट ऑफेंडेड, इट्स जस्ट दैट हमारा ही नाम खराब हुआ जाटों में यार, वो दिक्कत है। which is a good time to bring in the idea of calibration also। और एक सेकंड वो पॉइंट खत्म करना था, मैं हम कहाँ पे थे, वो assuming familiarity वाला। तो पिकअप में होता है assuming familiarity, बट हमने वीडियो बनाई, अभी रील डाली है भाई, 4 दिन पहले रील गई है, never be awkward around girls and do this instead। ये स्किट फॉर्मेट में, जैसे अभी मैंने तेरे को करके दिखाया, वैसे ही हमने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करा, स्किट दिखाई लड़का लड़की, और फिर अच्छा वे एंड बुरा वे दिखाया भाई, 2 मिलियन व्यूज, क्रेजी। बट अगर हम सेम चीज बोलते हैं assume familiarity when you're talking to a girl, act like you already know her, it wouldn't hit bro। तो मैं ऐसे बोलता 2017 का RSD ये कहाँ but because so I think what you were doing is a technician trying to talk to other technicians, now you're talking like
I am still a technician, but I'm talking to the masses now Talking in to a the language that masses. they understand, right? Correct. But उससे कुछ dilution हुआ है in the way you teach things. भाई YouTube पे हुआ है, but जब when people come on our courses and everything, then we're giving them the real It's shit. the same stuff. Yeah. It's the मतलब we've changed the जैसे अभी we've created structures around it. We have like a 5-step system, 5-step get the girl system है. We're creating a structure around a conversation. तो हम उसको ना packaging में भी कर रहे हैं. And new product एक और plan कर रहा हूँ मैं. तो उसमें हम चेंज कर रहे हैं ताकि वो और लोगों को समझ आए एंड थोड़ा हम और डंप डाउन कर सकें एंड सो दैट वी कैन ट्रिम आउट द फैट. Yeah. बिकॉज बहुत थ्योरी है यार, इतना कुछ चाहिए नहीं. हम बेसिक चीजें करके हाउ डू वी गेट गिव अ पर्सन 20% ऑफ द इन्फॉर्मेशन, गिव हिम 80% ऑफ द रिजल्ट. Yeah. और फिर उसके बाद अगर वो उस लेवल पे आ गया 80% रिजल्ट, उसके बाद एंड की 20% के लिए उसको एडवांस में हम बाद में सिखा देंगे. तो वो प्लान है भाई अभी हमारा. I'm not sure what changed, but in those days when I would consume videos from RSD, by the way, which is like a एक पिकअप कंपनी होती थी एक पहले. कंपनी होती थी, सबसे बड़ी कंपनी होती थी जो सबको सिखाती थी कि आप किसी से भी जाके ऐसे बात कर सकते हो. आई स्वेयर टू गॉड ब्रो, मैं एक वीडियो देखता था, मैं वो वीडियो बन जाता था. ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन. Same bro, सो same कि for me. लाइक समथिंग एज डम एज कि ब्रो मैं स्टेट में नहीं हूँ. हाँ. और भाई पता है मेरे को जो दिमाग की ना इतना प्रेशर ले लेके जीना था. एंड देन केम टू स्पेन एंड रियलाइज मुझे क्या करना आता है. ठीक है, चलो ठीक है, लिटिल रस्टी, इट्स बीन अ व्हाइल, लाइक व्हाटएवर. But I'm so glad, like I didn't watch videos. I just went and just did what came naturally to me. And I realized, That's good, भाई बैठ के रात को 2 घंटे देख के फिर 4 घंटे देख के कुछ नहीं होता. बिकॉज आपके अंदर एक गट फीलिंग है, एक इंस्टिंक्ट है. That is, it's rusty. आप भूल चुके हो उससे कॉन्टैक्ट है, पर वो है. It's gonna speak louder than any 6-4 hour seminar on maintaining inner game or state. मतलब ये वाली चीज. यार 6-7 घंटे के सेमिनार ऑन इनर गेम इज अ बिट टू मच ब्रो. इट्स ओवरकिल. इतनी जरूरत नहीं होती है. तुम्हें बेसिक चीजें चाहिए होती हैं और दैट्स मोर लाइक इट यार. अच्छा एक बात बता, कैलिब्रेशन की बात कर रहे थे हम लोग. जैसे हम किसी पार्टी में खड़े हैं, ठीक है. अब मैं एज ऑफ नाउ इट्स बीन लाइक 32 days ऑफ लाइक नॉट ड्रिंकिंग एट ऑल. हाँ ठीक है, आई बीन इन स्पेन वगैरह. तो आई बीन नोटिसिंग सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स. I observe more, right? Because अब मैं different events पे जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ. मैंने एक चीज़ नोटिस करी है. One thing that remains the same across the world is अगर एक ग्रुप खड़ा है लोगों का, कुछ लोग बड़ी naturally जाके come meet my friend ऐसे कर लेते हैं, easily कर लेते हैं. और कुछ लोग ना एक ऐसी बात बोलते हैं जो एकदम पे रूम की सारी हवा खींच देती है. हाँ. और वो बोलते बहन जी ये क्या बोल गया, और फिर वो उसको संभाल नहीं पाते. हाँ. कुछ लोग ऐसे होते हैं इतने ब्रूटल बातें बोल के भी क्या है उसको कैलिब्रेट कर जाते हैं या संभाल जाते हैं, तो लोग उसको उनके नेचर का हिस्सा समझ लेते हैं. राइट, जैसे रसल ब्रांड, अब तो खैर उस पे वो कंट्रोवर्सी हो रही है, बट देयर सेवरल एग्जांपल्स. राइट, यू आर लाइक दैट, आई एम लाइक दैट. उल्टी सीधी बातें बोल के लाइक वी आर एबल टू लाइक सॉर्ट ऑफ यू नो गो थ्रू. ठीक है. हाँ, बट फिर मैंने ऐसा भी देखा और मेरे को बुरा लगता है. लाइक एक नेटवर्किंग इवेंट में बंदा जनरली आता है, हाय एक्चुअली आई आल्सो वांटेड टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम फलाना एंड अच्छा ओके एंड लाइक हाउ. तो उससे कैन वी यूज दैट एज एन एग्जांपल? या 100% टू टॉक अबाउट कैलिब्रेशन. भाई जो वो बंदा आ रहा है ना ऐसे इंट्रोड्यूस करने अपने आप को, वो ये नहीं सोच रहा है कि व्हाट कैन आई गिव. वो ले रहा है कि मुझे इंट्रोड्यूस करना है, मुझसे प्लीज मुझसे बात करो. 2 लोगों की बात चल रही है, वो ये नहीं देख रहा है कि इस कॉन्वर्सेशन में मैं कैसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ. वो कह रहा है आप अपनी कॉन्वर्सेशन खत्म करो और मेरे से बात करो और मेरी सुनो. दैट्स वेयर इट फक्स इट अप. दैट्स द प्रॉब्लम. और वो ये सोच के भी जा रहा है कि भाई मतलब कि प्लीज, वो आई थिंक नीडनेस ही, एवरीथिंग इज जस्ट दैट कि मैं इनसे क्या ले सकता हूँ, ना कि मैं क्या दे सकता हूँ इनके में. इट्स ऑल अबाउट दैट. एट द सेम टाइम मैंने ऐसा भी देखा, 2 लोग बात कर रहे होते हैं, उनकी बात बिल्कुल जीरो करके मैं ले भी जाता हूँ कि भाई अब हम ये बात करेंगे. राइट, आई हैव आल्सो सीन कुछ लोग जो अपने स्टेटस को लेकर अगर कॉन्फिडेंट नहीं होते, they try and it doesn't end up too well. True, that's also there. वो confidence है ना, मतलब see if you're, what's the intention behind saying something? अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ just for the heck of it, for fun of it, that's cool. But if I'm saying to get a reaction, या I'm saying to you know इज्जत चाहिए मुझे तुमसे, या मेरे पे स्टेटस नहीं है तो तुम मुझे स्टेटस दे दो यार, ये देखो यहाँ पे सब लोग हंसी खुशी खेल रहे हैं, मैं थोड़ा इग्नोर हो रहा हूँ, तो मैं एक जोक मारता हूँ. अरे जोक ढूंढते हैं क्या, संता बनता कोई जोक याद करता हूँ, अरे यार एक बार स्कूल में एक जोक सुनाया था भाई, ये वाला बढ़िया चलेगा. मार चुदा गई भाई, वो जोक क्रैक करा, नहीं चला. क्योंकि जब तुमने पहले वो जोक मारा था
तब तुमने जोक मारा था विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न ना, You didn't care, bro. यू डिडंट केयर, नाउ यू केयर सो मच। तो वो क्यों वर्क करेगा वहां पे? वो नहीं करता है, और सब लोगों को वो पहचान जाते हैं। तो कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली व्हाट यू से बट वेयर इज कमिंग फ्रॉम। तुम्हारा खुद का मेंटल स्टेट क्या है, कॉन्फिडेंस स्टेटस जो तू कह रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है, तुम्हारी एस्टीम कितनी है, तुम्हारी इस हायरार्की में कितनी औकात तुम्हें खुद की फील हो रही है, और तुम्हें जितनी खुद की औकात फील होगी उतनी तुम्हारी होगी औकात। तुम बोलोगे मैं एपेक्स प्रेडेटर हूं तो तुम हो भाई, तुम बोलोगे मैं एकदम तुच्छ प्राणी हूं तो तुम तुच्छ ही हो भाई। तो चल ऐसे एक बात करते हैं, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बड़े, उनमें आपको एक रॉ हंगर दिख जाता है, इस आदमी को कुछ करना है, और उसको लगेगा इस कमरे में सारे बड़े दिग्गज आए हुए हैं। पर्टिकुलरली ये मेरे को सबसे ज्यादा मेरे से सवाल पूछते हैं कि आप अपने से इतने बड़े बड़े शूटिंग कैसे चला लेते हो पॉडकास्ट की करने के लिए। मैं सोचता नहीं हूँ, सोचना नहीं होता है। अपने घर पे होगा एमडी ऑफ फलाना फलाना, मेरे लिए भाई इनसे बात करनी है सिंपल। तो मेरे मन में उनकी छत्र छाया छवि नहीं बनती। सेकंड इज लाइक द बेनिफिट ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर ऑलवेज, राइट? Because you're not in their world, you don't care, you don't think about the same mannerisms कि इसको ऐसे अप्रोच करना है, फलाने के लिए ये गतिविधि बनानी है, right? But lots of younger guys particularly are in a room with other more important older guys, right? They don't know how to say that I am also of value, right? So they do one of two things. Either they pander and suck up, hey sir, whatever advice you can give will be, यार बिल्कुल ही बहन तो उनको सर बना देते हैं। दूसरा ये होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट कॉकी आने की कोशिश करते हैं, एंड लाइक यू नो यूजुअली older guys are more matured and seasoned, it turns them off, right? How would you say, and specifically like a younger guy can even network with older guys and older women for that matter, like professionally, right? Yeah. I think I'm not a big fan of networking anyway. What I mean to say is like कि I feel like मतलब तुम्हारा domain अगर same है तो ठीक है, like it would make sense for us to network with each other, but it wouldn't make sense कि अगर मैं जाके नेटवर्क करूं किसी पॉलिटिशियन के साथ, मे बी यूड वांट टू नेटवर्क विद अ पॉलिटिशियन, राइट? बिकॉज तेरे को पॉडकास्ट पे लाना है, बट मुझे क्या करना है पॉलिटिशियन का भाई? तो अगर मैं एक पॉलिटिशियन वाले उसमें जा रहा हूँ एंड देन आई ट्राई टू मे बी टॉक टू द पॉलिटिशियन विदाउट एनी क्लियर एक्सचेंज ऑफ वैल्यू, देन कोई रिलेशनशिप का फायदा ही नहीं होना है वहाँ पे। So that's evident. Like, do you think people just talk for the sake of I feel आधे टाइम इसलिए करते हैं। बट अब चल ठीक है, ये देखते हैं, मेरा एक स्टार्टअप आइडिया है, मैं उसमें एआई में कुछ कर रहा हूँ, मैं एक नेटवर्किंग इवेंट में जा रहा हूँ, वीसीज है वहाँ पे, अब मैं उनसे बात कर रहा हूँ, एंड देन आई गो अप टू हिम विद कॉन्फिडेंस, आई टॉक, एंड आफ्टर दैट कॉन्फिडेंस आई टॉक अबाउट माई आइडिया एज वेल। सो दैट मीन्स हमने कॉन्फिडेंस सर्फेस पे भी दिखाया है, चीजें हैं, और एक सब्सटेंस भी तो है हमारे पास, एक प्रोडक्ट जिसमें वो असली में इंटरेस्टेड भी तो होने वाला है भाई। लेट्स से यू हैव द बेस्ट नेटवर्किंग स्किल्स, तुम सब कुछ हो, बढ़िया हो, लेकिन तुमने एक घटिया सी कंपनी बना रखी है, तुम क्या कर रहे हो, तुम साला चीनी बेच रहे हो, ठीक है? तुमने बोला भाई नेटवर्किंग तुमने सारी सीख ली ऐसे पॉडकास्ट देख देख के, अब तुम बोल रहे हो वीसी से मैं फंडिंग लूंगा, क्यों देंगे भाई तुम्हें? जस्ट बिकॉज तुमने नेटवर्क करा है, और फायदा क्या होगा उस नेटवर्किंग का? नो मैटर व्हाट यू डू, इफ यू से आई हैव गॉट अ शुगर सेलिंग कंपनी, फक ऑफ डूड, सब बेच रहे हैं शुगर। So what I get from this is has to be a clear value exchange. There needs to be core value also. There needs to be real value also. Not just perceived value is your confidence, your status and everything, right? And then उसके पीछे एक real value भी होनी चाहिए ना भाई, कि वो क्या, और वो रियल वैल्यू एक बंदे को लगेगी, एक बंदे को नहीं लगेगी, ठीक है? somebody feels that, somebody doesn't feel it. Like अब जैसे हम एक इवेंट पे थे जब तू और मैं साथ थे पिछली बार, हम मुंबई में, तो भाई वहां पे बहुत सारे लोग थे, एंड मेरे को तो बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि सब लिटरली नेटवर्क करना चाह रहे थे मेरे से, तेरे से। अरे देख यार ये क्या है, ये मतलब ये देख रहे हैं काम कैसे निकालें, हेलो हाय, अगर यही वो, मैं कह रहा हूँ ना कोई वाइब कर रहा है ना कुछ कर रहा है, और साले तेरा फायदा क्या है मेरे से काम निकालने का? मैंने तो बोला मैं तो मुफ्त की दारू पीने आया हूँ और मैंने पी। हाँ, मैं कहा ये तो परेशान कर रहे हैं, मैं बहन जो वाइब ही नहीं है यार। क्रिएटर इकोनॉमी में ना ये थोड़ी सी दिक्कत है, बिकॉज दे लाइक मास्टर्ड द ऑनलाइन फ्रंट, बट फिजिकली दे फिजिकल कम्युनिकेशन में इट लीव्स सो मच टू बी डिजायर्ड। और मेरा तो नेटवर्किंग में बड़ा मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ भाई, कैसे नेटवर्क करूँ? ऐसे किसी क्रिएटर को रीच आउट करना होता है, मैं क्या बोलूँ इसको भाई कि हेलो हाय पॉडकास्ट करते हैं, बट आप ठीक कह रहे हो कि हम कोलैब कर रहे हैं, तो आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट, लाइक आई विल जस्ट डू इट, राइट? बट अब मैं यार वो बड़ा आदमी, उससे जरा हेलो करके आते हैं, लाइक व्हाट, कुछ बन जाए बाय चांस, कुछ हो जाए। ऑन वन हैंड आई अंडरस्टैंड, पुट योरसेल्फ आउट देयर, अननेसेसरली क्यों करना है? हाँ, बदन में समझ नहीं आता कि भाई कैसे करें कैसे नहीं करें, मैं कह रहा तो बड़ा अजीब है भाई। सो लाइक व्हाट वुड यू से, लाइक क्योंकि यार देख तू तो लोगों से मिलता है, तू भी अपने बिजनेस के काम कर रहा है, तू तो कुछ मैं तो क्रिएटर से नहीं मिल रहा ना आजकल, जिससे भी मिल रहा है, मार्केटर से मिल रहा है, अपने एम्प्लॉयज भी कहीं ना कहीं से ढूंढता होगा, अपने क्लाइंट्स भी कहीं ना कहीं से ढूंढता होगा, तो तू वो हाउ डज दैट हैपन? बिकॉज यू डू सीक आउट सम पीपल, राइट? भाई रियल वैल्यू है वहाँ पे, सिंपल सी बात है। हम अगर मैं कहीं से कुछ सीक आउट कर रहा हूँ, आई एम पेइंग देम फॉर देयर टाइम,
जो भी है, जैसे रिक्रूटर है, we're hiring people, एक रिक्रूटर है उसको हम पे करते हैं। उसके अलावा हमारी एड्स की एक एजेंसी थी बीच में, we're gonna start with them again, हम उसको भी पे कर रहे हैं। वो टैग मैंगो वालों के साथ था, टैग मैंगो वालों से बात होती है बिकॉज हमारे कोर्सेज उनके साथ हैं। there's a clear exchange, मतलब मैं बिना बात नहीं एंगेज करता हूँ इसी से यार। मे बी देयर आर सम क्रिएटर्स दैट रीच आउट, जैसे अभी रियल हिट वाला पॉडकास्ट था, वी रीच्ड आउट टू देम एंड दे इनवाइटेड अस ऑन बोर्ड। लेकिन वो कन्वेंशनल करियर यूट्यूबर्स हैं, तो उनके सवाल बड़े इंटरेस्टिंग डिफरेंट रहे होंगे। उनके सवाल वही बेसिक वाले थे ब्रो, कि यार ये सही में होता है, और बात करते हो कैसे करते हो, आप अप्रोच कैसे करोगे, जैसे दो लड़कियां बैठी हुई हैं, आप उनसे कैसे बात करोगे। एंड अरे यार उसमें ना हमारी इतनी सारी स्टोरीज आ रही थी ना, इवन बिफोर एंड इवन आफ्टर, जब हमने बात करी पॉडकास्ट के बाद, तो बहुत सारी चीजें आ गई थी यार वहाँ पे। तो फिर हमने उसको काटा भी, और हमने उसको हमने प्रीमेच्योरली बंद करा था, क्योंकि वो हमने बस शुरू का ही कवर करा। लगता है कि यार मेरे को तो टीज करना नहीं आता, या मैं तो प्लेफुल नहीं हूँ, सब है आदमी। हाँ, वो बस या तो उसकी इतनी ले ली गई है दुनिया ने ना, दुनिया से जिंदगी में, कि वो उसको ला ही नहीं पाया है बाहर। बट ला सकता है, मतलब इतना कुछ है नहीं। अगर किसी को ऐसे लगता आता भी नहीं है ना, वो भी सीख सकता है भाई। जैसे मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स वो यही कहते हैं कि भाई हमें नहीं आता, पता ही नहीं, दिस इज सच अ डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। हाँ, टीजिंग का सीन पता है क्या है, देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन टीजिंग एंड ऑफेंडिंग समवन। ठीक है, वो लाइन ढूंढना बहुत डिफरेंट है। That's art, right? या तो वो सीखना इंपॉर्टेंट होता है भाई। Your nose looks like a pig. Your nose would make a pig flatter at the sheer amazingness of its shape. जो 3-4 वर्ड और like बिल्कुल 3-4 वर्ड, और एकदम क्लियरली नहीं बोला कि ये चीज बेकार है, बोलना ये मेरे को समझ नहीं आ रही क्या है। ठीक है, आई हेट योर शर्ट, अ बिट पोलराइजिंग, बट इज लाइक आई एम नॉट श्योर व्हाट आई फील अबाउट दैट शर्ट। That's the game. That's the game. Really? Oh, really? That's the game. भाई तो I don't know what I feel about that shirt, dude. पता नहीं. Why? And then the girl's like, what do you mean? Why? But it's funny that no matter how much time passes, जब आप अपने मन के BS को खत्म करते हो, you stop your excuses, it comes back to you. Yeah, dude. जैसे आज हम इनफील्ड रिकॉर्ड कर रहे थे, we were shooting videos today here in London, and इनफील्ड रिकॉर्ड करते हुए बड़ा हेड में चला जाता हूँ यार मैं, क्योंकि तेरे को परफॉर्म करना है ना। हाँ यार, लाइक यू नो, अब मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने, अपना बैग टांग के मस्त, वो कह रहा है भाई मैं यहाँ हूँ 10 मिनट का वॉक है, जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ गूगल मैप पे साइड से लड़की जाती है, मैं कहा सिंपल घूम रहे हैं, मैं कहा हेलो एक्सक्यूज मी, कह रही यस, मैं कहा वेयर इज ये जगह, कह रही यहीं सामने ही है, कह रही मेरे को पता नहीं बट आई थिंक सामने ही है। तो उसने कोट पहना हुआ था, मैं कहा व्हाट आर यू हाइडिंग इनसाइड दैट कोट, इट्स सो बिग, कह रही नथिंग, मैं कहा यू गॉट गन्स। बात स्टार्ट हुई, व्हाट्स योर नेम, कहाँ से आए हो, कहती यूक्रेन, मैं कहा वॉर से भाग के आए हो, कहती यस। तो बातें स्टार्ट हो गई, इंस्टाग्राम एक्सचेंज हो गया, दोस्त के फ़ोन आए जा रहे हैं, मैंने फ़ोन उठा के उसको वहीं डाल दिया, मैं कहा तू सुन साले, वो हुआ डन। फिर मिला, फिर हमने कैमरा सेट हो गया, माइक वाइक सेटअप किया, भाई 15 मिनट घूम ही रहे हैं बस, बहन चो इधर उधर, मैं कहा क्या बड़वा गिरी है यार ये। फिर भाई बड़ा बहन चो धक्का स्टार्ट होने के बाद अप्रोच एक, फिर रुके, फिर कोई नहीं दिख रहा है, फिर अप्रोच 2, फिर निकले इधर उधर जाके, आई एम पर्पसली नॉट सेइंग द वेन्यूज वेयर आई वाज सो दैट यू नो फॉर प्राइवेसी रीजंस, बट फिर गए इधर उधर, और फिर वहां पे थोड़ा 1 2 3 4 फिर शुरू हुआ यार। आई वाज लाइक दिस फकिंग शिट डूड, व्हेन देयर इज नथिंग आई एम इन माय एलिमेंट, राइट। जैसे तू है, तू वो एक्सपीरियंस कर रहा है, बट मैंने बोला भाई विनम्र तेरे को अपने चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वीडियो बनाना, और मैं इनफील्ड ऑन करूंगा, और ऑडियो तेरे को ये भी देखना है, ऑडियो आ रहा है, एंगल आ रहा है, ये वो कैमरा मैन आइडेंटिफाई ना हो जाए पीछे, और तुझे चल अकेला घूम बात कर, और अभी तुझे बस बात ही करनी है, तुझे कुछ नहीं देखना है। जैसे स्पेन में यूड बी चिलिंग डूड, you're doing things, you're chilling, you're like, if you see someone you organically talk, here you have to, so agenda na, it gets it's very crazy dude, but but you still do it, right? That's being a professional. I do it, I'm a professional, I can't be a fucking bitch about it, I have to do it, have to get it done, so I got it done. मैं ये भी बोलता हूँ कि doing it on a vacation with no cortisol, no agenda, remote work, ठीक है, बहुत सही है भाई, ठीक है। अब the challenge is मैं पिछली बार जब लंदन में था ना, no cortisol, no agenda bro, fucking amazing भाई। So now the challenge is to go back home and retain this, because I want to retain this, because I understood this is something you can have anywhere, it doesn't have to be just a vacation, bro, 100%, right? It's just a matter of अपने BS को कम बिलीव करना। मैंने जितना बड़ा कि यार अब तो वो मेरे को, अब इस पार्टी में 10 लोग जानते हैं, मैं नहीं कर सकता यार ना यार, अब तो चलो यार साइड कार पे जाके कॉकटेल पीते हैं, क्या डजंट सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो साइड कार ही जाता रहता है।
यही तो होता है आदमी अच्छा, हमें पता होना चाहिए। आदमी यही तो होता अच्छा। है जब बोलता है कि देखो उससे बात करो उससे बात करो, थोड़े नाइट लाइफ को डीपली एक्सप्लोर करो भाई। देखो हम एक्सप्लोर करें और क्या, नाइट लाइफ को डीपली। डीपली एक्सप्लोर करो। हर चीज बहन जो थोड़ी होती है सीपी के क्लब वगैरह नहीं है। सीपी के कौन सा क्लब में गया हूं मैं? मुझे क्या पता, जाता होगा भाई तू, अबे तेरी हरकतें होंगी जाता होगा तू। वैसे एक बात बता, हाँ। सीपीए क्लब वाली नाइट लाइफ is a very weird phenomenon, right? Hackett Yeah. की टी-शर्ट वाला, I don't know who goes there. इट्स बैड डूड यार, वो तेरा ना लोग जाते हैं भाई। अब मैं नहीं बोलना चाहूंगा कि हमारे क्लाइंट्स भी हैं काफी लोग, तो हम इतना भी, अब मैं तेरे एलिटिस्ट कॉन्वर्सेशन में घुसूंगा नहीं। हाँ, मैं एलिटिस्ट हो गया। हाँ, मैं घुसना नहीं चाहूंगा। जब मैं तेरे से मिला था 2020 में, ठीक है, मेरे पास ना अच्छे कपड़े नहीं थे पहनने के। पता है मुझे क्या बोला इसने और अपूर्व ने इतनी गंदी मैंने बोला, मैंने गंदा नहीं, मैंने बोला कि ओवरसाइज टी-शर्ट ले लेते हैं, पहनते हैं, ये क्या पहन रखी है बिच्ची जीन्स। मैंने बोला बढ़िया लगेगा भाई मैंने स्ट्रीट स्टाइल पहन लिया, माय स्ट्रीट स्टाइल फेज इज ओवर। या इट्स डन। आज तू नहीं पहन के आया तो इट्स ओवर। साले रोज स्ट्रीट स्टाइल पहनता है। ओल्ड मनी एस्थेटिक इज व्हाट। ओल्ड मनी एस्थेटिक तो मैं भी खरीद के लाया हूँ, ठीक है, वो भी पहन लेंगे भाई। मैं क्या बोलूं जब मौलवी साहब भी कोई और गाना गा रहे हैं। मौलवी साहब नहीं गा रहे, मौलवी साहब बस यूरोप के लिए लेके आए हैं। मौलवी साहब दिल्ली अभी क्या स्ट्रीट में है हम। अच्छा, उससे लंदन में स्ट्रीट, सॉरी लंदन में ओल्ड मनी का इतना वो लंदन में नहीं है। आई एग्री विद यू। लंदन में, स्पेन में है, फ्रांस में है। भाई मेरी गांड फट गई स्पेन में कुछ बंदों को देख के। स्पेनिश और इटालियन बंदे बर्गनस्टॉक भी लाया मैं तो खरीद के ट्रिप के लिए। है बट स्पेनिश और इटालियन बंदे ना इमैकुलेटली ड्रेस करते हैं एट ऑल टाइम्स, एंड यू विल फील लाइक द अमेरिकन टूरिस्ट हु थिंक्स कि हर जगह जो निक्कर और वो पहन के मैं आ जाऊंगा। यू फील लाइक, मैंने स्पेन में जाके रियलाइज करा भाई मेंस फैशन क्या होता है, ट्रूली क्या होता है। यार 3 साल पहले वी वर वेयरिंग दैट वही ओल्ड मनी एस्थेटिक ओनली, जैसे स्लिम फिट वगैरह हम सारे क्लाइंट्स को वही दे रहे होते थे, एंड इट वाज ओल्ड मनी। बट देन स्ट्रीट स्टाइल का फैशन आया था, और इंडिया में अभी भी है, लंदन में भी है। बट वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड इज यूरोप एंड लंदन वगैरह में ना, द पीपल दैट हैव मनी दे ड्रेस ओल्ड मनी एस्थेटिक ओनली। जो लोग, जैसे अभी मैं स्ट्रीट में हूँ ना, इट्स मोर ऑफ लाइक कल्चर, हिप हॉप वाले बंदे जो तुम्हें शॉर्टेड साइड पे ज्यादा मिलेंगे, एंड इधर भी मिलते हैं, बट देर मोर लाइक यंगर वंस। यू सॉर्ट ऑफ, यू मतलब मैंने देखा है जो बंदे काम वाम कर रहे हैं थोड़े लिटिल बिट 25 के पार है ना, दे मूव इनटू, जैसे तू शॉर्ट्स पहन रहा है अभी। अगर कंजर्वेटिव प्रोफेशन है ना, पर्टिकुलरली वेयर यू वांट टू बी सॉर्ट ऑफ लाइक seen as like a professional, like a lawyer and everyone. मतलब आपको basically you have to commit to the job Yeah. in the way that you commit to the outfit. Like, but I understand also भाई, तो मैं भी like I'm also thinking कि maybe like what is the difference जो होएगा अगर मैं shorts में अपनी videos present करने लग जाऊँ. Like I'll be more like a fucking dating coach, not a dating. I'll be more like a love coach. Hi, I'm gonna help your love life. Yeah, like you know that kind of fucking thing. And this was one thing which was missing in all of the dating companies and has still been missing. RSD के साथ ही नहीं था भाई। दे वर लाइक तुम आए हो पैसे दो और फिर जाओ भाई, व्हाट द फक। वो ऐसे अटैच करते थे कि सुपरस्टार्स हैं। नहीं भाई, एंड आई पिक दैट अप इन माय फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स आल्सो। आई वाज लाइक डूड, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। so you believe in customer success? हाँ भाई, एकदम। That's what I've learned from startups. That's what I've learned from any coaching that I've taken to learn about business. Like I've spent tens of thousands of dollars in coaching, bro. Like मैंने $10,000 की 2 तो ली हैं, और उसके ऊपर पता नहीं कितना books and other ways I've met people and consulting and everything. But anyway, the point being कि भाई customer success number 1. उसमें घुसना है मुझे सबसे ज़्यादा। मार्केटिंग इज ग्रेट, हमारा सेल्स इज ग्रेट, व्हाटएवर, वो सब ठीक है, बट कस्टमर सक्सेस आई वांट टू बी द बेस्ट एट। लाइक इफ यूर अ क्लाइंट, यू शुड गेट, मतलब अनलेस यू टू एंटाइटल्ड, यू शुड गेट द बेस्ट अमाउंट ऑफ सर्विस दैट यू वांट फ्रॉम अस। ऑफ कोर्स विल चार्ज यू फॉर दैट, एंड वी आर गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव वन इन द मार्केट, विल बी द मोस्ट प्रीमियम वन, बट विल प्रोवाइड यू द बेस्ट सर्विस। हम जितना कर सकते हैं, एंड वी ट्राई एंड गो अबाउट एज मच। Awesome, bro. I love to see this part of you. यस ब्रो, ये चल रहा है एकदम फुल पावर। Are you happy? या ब्रो, अब और भी कर रहे हैं ना। अभी मेरा कस्टमर सक्सेस मैनेजर क्लोज हो गया, अब एम्स हायर हो रहे हैं, और अभी प्रॉपर हम ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बनाया है हमने कि भाई बंदा ऑनबोर्ड होएगा 10 दिन में, उसको ये चीज़ें करा के एकदम चीता बना देना है 10 दिन में। चीता ही कह रहे हैं, देखा तूने? नहीं। शेर चीता? नहीं। मैं उसका दिखाऊंगा शेर चीता। एक दो तेरे रील्स की चॉइसेस भी ऐसी है ना, अलग अलग। देख, it's me, it's sidecar and shade. That's how I operate, bro. Two worlds. नहीं, वो भी नहीं है। It's गाँव and गुड़गांव। एक है पुनीत सुपरस्टार वाला, और वो जो क्रिंज रील्स वाले ईमो बॉयज ऑफ इंडिया टाइप का एक तेरा कंटेंट, एक तेरा साइडकार वाला कंटेंट है वो, और एक तेरा भाभी लवर है। ये तो तू जबरदस्ती बना रहा है। नहीं मैं है। कौन सी भाभी लवर हूँ भाई? है भाई,
वो क्यों भूल जाते हो तुम? ठीक है भाई, ये ना ये एक तो गाइस मैं बोलता हूँ जितने भी अजगर भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये अजगर मतलब ये भाभी लवर काट रहे हैं, हम रख रहे हैं? नहीं भाभी लवर ऐसे रख रहे हैं, मेरे को ऐसे कोई वो थोड़ी है अपने फेस सेविंग नीड। वैसे एक चीज लाइक यू नो सॉर्ट ऑफ लाइक रैप थिंग्स आउट, आई हैव नोटिस्ड इंडियंस हैव अ फार बिगर फेस सेविंग नीड देन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, राइट? लाइक अपमान बचाना, राइट? Yeah. कि मतलब अच्छा, you've seen that with a lot of people. with I've seen across the world, Across the right? world. Like for example, मेरे तेरे बीच में कोई इनकर्जन हो गई और तेरा बाहर ऐसा पता लग गया कि इससे ये चुदियाप हो गया, ठीक है? तो मैं अगर अमेरिकन हूँ ना, तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, whatever. Like I won't go out of my way to make sure that you are feeling okay and I defend your reputation almost, right? इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है कि उनका मान रह जाए, उनकी पगड़ी रह जाए, उनका सम्मान रह जाए, right? So in a country like that, you're out here with your arsenal of coaches and your company now teaching dating, right? Like, have parents ever reached out to you and said कि this is not up to the mark, या फिर ये ऐसा है वैसा है, आप ये मत करो, ऐसा मत करो? नहीं पेरेंट्स आई थिंक उनकी फीड पे अभी तक गया ही नहीं होगा ना. इट्स नेवर हैपेंड. माय गर्लफ्रेंड्स फादर सॉर्ट ऑफ उसको उनको किसी ने बोल दिया कि भाई ये लड़का तो ना लड़कियां दिलाता है. तो अब उन्हें लग रहा है क्या लड़कियां दिलाता है, सो ही फ्लिप्ड आउट. करेंगे तो एनीवे, तो then he flipped out. हाँ. He flipped out. Then my girlfriend's brother and my girlfriend explained to him. Well, I think my girlfriend's brother explained to him कि भाई ऐसा नहीं है, he's doing very good and he teaches people how to be more confident and this is what he does. तो वो जो दूसरा बंदा था, I think उसका पहले वही रिश्ता आ रखा था for my girlfriend. And she's trying to create fucking some चुतियाप बीच में कि भाई ये है. So but whatever, all good यार. They're like हाँ ऐसा नहीं है कि कुछ बेकार है, ये है वो है. They're like fine. So people do understand, dude. I think even my family understands by this point in time कि ठीक है, लौंडा जो कर रहा है, घर पे लाल ऑडी खड़ी हुई है तो कमाल ही कर रहा है. तो वही है भाई. लाल ऑडी आ गई, जो साल भर होने वाला है ना भाई. तू एक टाइम एक डिफरेंट गाड़ी में आया था मेरे पास. मैं तो आदमी की प्रगति की सीढ़ी को उड़ते हुए ऐसे देखता हूँ. लाल ऑडी वो पहली गाड़ी थी. हाँ. डस्टर हमारी सेकंड हैंड ली थी हमने. 3.5 लाख की ली थी पहली गाड़ी 28 साल की उम्र में, और 2.5 में बेच दी थी हमने. क्या बात है, बड़ा अच्छा लगा. और अब ये तो मिठाई वाली कॉन्वर्सेशन हो गई. मिठाई हम लाए हैं भाई, चॉकलेट्स लाए थे, काफी सारी चीजें लाया मैं तेरे लिए भाई. एक बिल्कुल एक जेन्युइन नोट पे, आई थिंक what I'm seeing more and more is, bro, what you do, it's going to become a need in society. क्योंकि हम ऐसी जगह पे भी जा रहे हैं, like क्योंकि online dating is fine. I know several friends who only master algorithms. ठीक है. बट डेट पे क्या करते हैं वो? डेट पे चल जाता है, नहीं भी चलता, हिट और मिस है. क्योंकि वो जो क्षमता है ना, प्राइमल, हेलो आप कैसे हो, मैं ऐसा हूँ, that is gone. That separates you from everyone else, dude. If you have the ability to go talk to a girl and approach her, look her in the eye and have a conversation, भाई तुम 99.99% जनता से अलग हो गए हो एकदम से. And you're of so much more value. लड़कियों के पास हजारों DMs आ जाएं, इतने फॉलोअर आ जाएं, बट वो जो असली में जब बात हो जाती है ना, देन तुम सारी चीजें हटा देते हो. तो इवन इफ यूर गोइंग इनटू क्रिएटर पार्टीज ना, जो तू जा रहा है इधर उधर या कहीं पे भी, नहीं जा रहा. नहीं फिर वो तू जो भी तू कह रहा है कि मैं एक सोशल उसमें जा रहा है तू अपने सर्कल्स वगैरह में. ब्रो मेरे को आर्ट पसंद है, आपको नहीं पसंद तो फिर आप ऐसे नहीं अरे वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ तू जो भी सोशल सर्कल्स में जा रहा है वहां पे यू सेइंग ना कि तुझे अप्रोच करना स्टार्ट करना है, तू कर नहीं रहा है, मे बी थोड़ा सा वैसे. नहीं वो बात कर रहा था मैं तेरे से. in those places I usually feel like यार too much बहुत सारी unnecessary वो है, but that's just me in my own head all the time, not putting myself out there like I should. And honestly ऐसा भी होता है कई बार किसी जगह पे गए कि इतने सारे लोग आके मिलने शुरू हो जाते हैं that you are like अब मैं इनके बीच में हूँ, मैं कैसे like it's एक होता है फ्री प्रोटैगनिस्ट मोड, एक होता है भाई हम जनता के आदमी हैं. वो बेकार की चीज है. बट वो तू फाइट कर सकता है. आई थिंक यू कैन फाइट इट इजीली आल्सो. Yeah, no, I realize this now. Now you realize it. सही है भाई. Bro, I've just been in one single paradigm, which is I want to grow this. I'm a podcaster. I want to scale it. I want to make money. मैंने कुछ नहीं सोचा 1.5-2 साल. Now in this whole trip, I've seen parts of me come alive again that had been like, you know, dead for like the last year or so. क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी है, पर कहा कि भाई अभी this is not necessary. I'm looking forward to go back and see like what that happens now. क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है जैसे तू कह रहा है ना कि it's an advantage to be able to talk to anyone. And by the way, if we didn't have this, I don't think I would have this podcast. I don't think I would be able to go to someone and cold email them, say
in person कि I want to get you on the podcast. Yeah. Shamelessly approach people and say मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए. All of it stems from it's बिकॉज हम भाई लड़कियों के साथ इतने रिजेक्शन हो गए हैं, ये पॉडकास्ट के लिए क्या ही रिजेक्शन फील ही नहीं होता है भाई. भाई अब मैं सरप्राइज्ड हूँ. अब जाके यूके में जाके मेरा कोल्ड ईमेल रेट पे 4 out of 5 क्लोज्ड. अच्छा. अब जाके बिकॉज इतनी कॉपी कर ली, इतना वो लिखना सीख लिया और अब नंबर्स भी हैं. मैंने ऐसे ईमेल भेजे हैं, 20 ईमेल भेजे दिन में, 0 रिस्पॉन्सेस. Really? Yeah, bro. Like, From the outside of it looks like कि bro जिसको तू reach out करेगा they're gonna come on the podcast always. but it depends, no? It's very easy to status hack and say I want the next famous वही guy, कह रहा next हूँ famous ना मैं. guy. Sometimes you don't want the famous person. Sometimes you want the reclusive person who has a specific interest that you are dying. Like मैं personally अभी एक ऐसे बंदे को reach out करने वाला हूँ who makes like prison में documentaries, Rafael Rowe, जिसने अभी Netflix पे आई है number 3 in the world, inside the world's toughest prisons. उस बंदे को 12 साल UK में ही illegally incarcerate कर दिया. अच्छा. जबकि उसकी कोई कसूर भी नहीं था. तो अब वो हर जगह जाता है prisons में और उन लोगों से बात करता है. Bro उसने मेरे को follow कर लिया Twitter पे. मैंने उसको कई बार कमेंट्स में लिखा कि मेरे को पॉडकास्ट करना है. Maybe he's seeing it. I've texted his PR, no response. And he's going on smaller podcasts in the UK, but that's what it is. उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो कोई लिंक निकाल ले. यही तो मजे हैं. The whole point of coming abroad was it's back to just the person without the resources. तो मैं जिस तरह से अब ऑपरेट कर रहा हूँ ना, मैं सुबह उठता हूँ, मैं कोल्ड ईमेल करता हूँ 20-30, 10-15, मैं फिर कुछ और करता हूँ, फिर और जुगाड़ करता हूँ. तो अंग्रेज गेस्ट ले रहा है पॉडकास्ट पे. Yeah, that's the next step. Let's see what Next step happens. है. It's कनाडा के वो आएंगे 3-4 मिलियन, राइट? जब पंजाबी पॉडकास्ट के podcast आएंगे. आएंगे. अभी तो हमने वो देखा नहीं है परमेश्वर ना. तो चलेगी इंडस्ट्री 5-6-10 साल तो कहीं नहीं गई. रणवीर की भी हिंदी में ही चलते हैं यार मेनली. उसका चैनल बेशक हिंदी का अलग है बट मोस्ट ऑफ इज इन हिंदी ओनली. His both of them work well because there is an audience for both. इंडिया में एक और चीज और है. एक तो लोगों के अंदर ना परसेप्शन ऐसा है कि पॉडकास्ट में मुझे कुछ ज्ञान मिलेगा. तो a lot of people get offended when you do comedy या बकचोदी करते हो. उनको लगता है कि ऐसा है. But what are you like really asking? Like from a should you enter podcast like इस तरह से? नहीं मेरा तो यार जैसे मैंने कोविड के टाइम पे आई स्टार्टेड डूइंग लाइव स्ट्रीम्स वगैरह जब बीच में करी थी. एंड आई रियलाइज 1 or 2 थिंग्स. वन इज वर्चुअल वाला सीन नहीं है. एंड आई फील इन पॉडकास्ट ना, जैसे मैं तो अभी भी वही बिलीव करता हूँ, एवरी पॉडकास्ट शुड हैव इट्स ओन वाइब. लाइक यू नो जैसे हम लंदन में हैं, हमारी लंदन वाइब होनी चाहिए. पार्क में और वहां पे सेट है और अभी हमने सेट करा हमने अपने हिसाब से. बट यहाँ पे भी इफ वी वर टू पुट इन अ लिटिल बिट मोर एफर्ट and get like I was going to say we could hire a podcast studio but it was too late. Not a studio भाई, studio नहीं ना. वहाँ पे एकदम ही वो एलीट वाली बात. वहाँ पे आप अपने रूट्स खो दिए हैं. साइड का है ना भाई. हम हाइड पार्क के बीच में बैठेंगे पार्क के, या हम साला किसी कैफे में बैठे हैं जहाँ से लंदन दिख रहा है भाई. स्टूडियो के अंदर लंदन नहीं दिख रहा है. तू समझ रहा है? लाइक फ्रॉम अ कंटेंट पर्सपेक्टिव हम लंदन दिखाएंगे और वहां हम बैठे हुए हैं और बंदा ना इमर्स्ड है उस एक्सपीरियंस में हमारे साथ कि 2 इंडियन लॉन्डे लंदन के बीच में बैठे हैं. इट्स नॉट ओनली अबाउट द टॉक दैट्स गोइंग ऑन, बट आल्सो अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू. इट्स एवरीथिंग अराउंड यू एंड हाउ वी रियली डोंट गिव अ फक. एंड हाउ इफ देयर इज अ गर्ल गोइंग बाय, तेरे और मेरे में से कोई उठ के उसको भी अप्रोच करेगा. इंटरेस्टिंग. इट्स तो लाइक तो इफ यू कैन गो देयर. I think मैं नेक्स्ट ट्रिप पे करूंगा because I need to bring a crew to make this happen. नहीं मेरा तो बड़ा मन था, पता है हम कर सकते थे आज. मेरा बहुत, मैं तेरे को कह भी रहा था, मैं कहा करते हैं यार. मेरा बड़ा मन है. मैं एक तो एक कैमरा लेके आया. If I brought 2 cameras, मेरे पास है ना दूसरा. भाई तो पर तू है भी तो एक ही इंसान यार. पॉडकास्ट तो अरे तो हम और लोग ढूंढ लेंगे ना. माय गर्लफ्रेंड इज हियर, विल फाइंड, आई हैव गॉट फ्रेंड्स ब्रो. हमारी चैनल्स हम बोलेंगे भाई पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, आ जाओ बहन. जो लाइव पॉडकास्ट हो रहा है, लाइव दोस्त इज हैपनिंग इन हाइड पार्क. कम भाई 30 people. It is on the cards though. हम लोग लाइव 30 people will show up bro. Yeah. We're doing a meetup on October 8th Sunday. If you're in London, come say hi. London में? Hyde अच्छा, Park, you're in London only? Hyde Park, हाँ. You could have done the podcast only then in London. कहाँ? हम लंदन में ही तो हैं. मैं वही तो मैं कह रहा हूँ. तो फिर आज ही हम वो पॉडकास्ट और वो लाइव मीटअप कर पछताए हो तो क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत. नहीं बट गुड आइडिया ना. प्रिंसिपल नंबर 48. अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. बट गुड आइडिया ना. आइडियाज डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा आइडिया. तो अब उसमें तो और दूसरी चीज आई रियलाइज इज मतलब every podcast should have a vibe. That's number one, right? If I were to do it, अब जैसे हमने डॉक्टर जी के साथ करा था उनके क्लिनिक में, तो उन्होंने पीनाइल इम्प्लांट दिखाए. उन्होंने एक वो पीनस के हार्डनेस का एक वो होता है वो दिखाया था. सिलेंड्रिकल वो ट्यूब्स टाइप की थी. उसको ऐसे ऐसे हिलाओ, एकदम टाइट, एक ऐसे और एक ऐसे ट्विंग
ट्विंग कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा भाई, और मैं खेल रहा हूँ, मैं कहा ये तो बड़ा मजा आ रहा है। तो वो वाइब है वहाँ पे डॉक्टर की कि भाई सब कुछ वो है लैब कोट वगैरह में। एंड सेकंड थिंग आई रियलाइज इज इफ आई अगर किसी बंदे से बात करके उसको गधे को भी बाप बनाना पड़ता है वाली वाइब हो रही है ना, तो वो नहीं करना मुझे। दैट्स वन थिंग आई हेटेड। देयर वर सम पीपल आई स्पोक टू जहां 1 घंटा निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा था भाई, फॉर अ लाइव स्ट्रीम, अ पॉडकास्ट, That's what व्हेन आई I'm वाज saying. डूइंग इट। That's what I'm saying. So वो बड़ा गंदा था यार। ये it's a very weird thing where एक ऐसा होता है स्टार्टअप का ओनर कि भाई मेरे को आई वांट मोर यूजर्स टू साइन अप फॉर माय ऐप, सो आई एम विलिंग टू गो राउंड एंड डू व्हाट इट टेक्स, राइट? लाइक यू सेड, लाइक समटाइम्स अ बिजनेस नीड्स अ स्पेसिफिक सीईओ टू डू समथिंग, राइट? करना पड़ता है, इज रिक्वायर्ड। दैट इज व्हेन यू सबमिट योर टेस्ट कंप्लीटली टू व्हाट ग्रोथ इज रिक्वायर्ड। अब कई बार क्या होता है आपकी ऑडियंस का और आपका ताल्लुक नहीं बैठता, ऑडियंस को चाहिए कुछ और, आपको कुछ और बनाना है। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, बट इट्स पॉसिबल टू स्टिल हैव ग्रोथ, yeah, बट दैट मींस यू 100%. डबल डाउन ऑन योर टेस्ट सो मच एंड जस्ट वेट। yeah. And अब तीसरी चीज उसमें कंसिस्टेंसी है। You still have to be consistent, right? So one thing that I figured out is that I will have conversations with people, but not because I want to create content, but because मैं थोड़ा genuinely interested हूँ। अब जैसे एक conversation हमने वो डॉक्टर के साथ करी है, वो सही में interested था मैं वाइग्रा खाने से क्या होता है, हमने सोचा तो हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई भाई वाइग्रा की। We spoke to my gym trainer, my friend, we went to a chemist. I like how you spoke to your gym trainer. जिम ट्रेनर से बात करी, उसने बताया, उसने वाइग्रा लिया है तो क्या हुआ है, उसके साथ क्या है, उसने पूरा बताया। एंड वी हैव लाइक दिस सिट डाउन इंटरव्यू विद माय फ्रेंड हु इज अ म्यूजिशियन, यूफोरिया में बजाता है, रश्मीत कौर के लिए बजाता है, सूर्यवीर के लिए बजाता है, बड़े बड़े बंदों के लिए गाने बजाता है। वो मेरा रूममेट है, उसने बताया भाई हर बारी वाइग्रा लेता है वो। उसके बाद मैं केमिस्ट के पास गया, उससे पूछा भाई बच्चे आते हैं, कह रहा हाँ बच्चे भी आते हैं। क्या इस पे क्या रिस्पांस रहा है इस पे वाइग्रा के इस पे? ब्रो फकिंग ब्लो अप ब्रो, 150-200 के व्यूज वहां पे। वाइग्रा जस्ट लाइक यू टॉकिंग टू पीपल अराउंड यू इन योर लाइफ। नहीं, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री भाई, इट्स एन एंटायर डॉक्यूमेंट्री व्हिच स्टार्ट्स विद, वही तो मैं बोल रहा हूं, देयर इज अ स्टोरी टू इट, व्हेन यू वॉच इट इट्स वेरी गुड। आई विल डेफिनेटली वॉच इट, मैंने देखी नहीं। फिर उसके बाद सो इट स्टार्ट्स विद मी टॉकिंग अबाउट वाइग्रा एंड वी डूइंग दैट, देन इज लाइक यार चलो मी गूगलिंग इट, देन टॉकिंग टू पीपल, then going to a chemist, buying Viagra, then thinking यार एक डॉक्टर से भी बात करते हैं, फिर डॉक्टर के पास गए, उनसे बात करी, और एंड में it's me taking it. It's an entire piece of content with great storytelling, and then I took it in the end and then giving my results of what happens when you take Viagra. और मैंने सही मिली, तो अब वो है। और उसके बीच में हमारी कॉन्वर्सेशन हुई डॉक्टर से, और वो कॉन्वर्सेशन अच्छी थी। कॉन्वर्सेशन के 10-5 मिनट गए डॉक्यूमेंट्री में, बट एक घंटे का पॉडकास्ट भी निकल गया। So that podcast wasn't supposed to be a podcast. Interesting, accidental ना ये? Yes, और वो and the documentary blew up to 150K, right? 150K views in like a week or something, and we're like, fuck, bro, this is the best video ever on the channel to perform 1 out of 10. We put down the podcast, 2 million पे है इनका लौड़ा भाई podcast. We're like, fuck. So वहाँ पे there was no agenda, nothing. So if I were to do a podcast, that's वो वैसे करूँगा मैं, for my channel at least. और I'm cool with like going on like other people's podcasts वगैरह। तो जैसे डॉक्टर के साथ हुआ है। दूसरा अब हम एक सेल्फ डिफेंस के ऊपर कर रहे हैं कि मार धाड़ में कैसे होता है भाई, बचाओ कैसे। तो मनन है जो मैं सेलिंग वर्ड नॉकआउट फाउंडर, स्पोक टू हिम, तो बड़ा जेन्युइन कन्वर्सेशन वहां पे। आई एम एक्चुअली गोना टेक दिस अप सीरियसली। मैंने अभी तक आई हैवंट, बिकॉज़ आई एम इन अ वियर्ड स्पेस वेयर आई एम थिंकिंग कि व्हाट एल्स कैन बी डन। आई एम डेफिनेटली हियर डूइंग इट अब्रॉड बिकॉज़ आई वांट टू एक्सटेंड। हर एक पॉडकास्ट सोचते हैं कि प्रॉपर ऑर्गेनिक कैसे कर सकते हैं, एंड यू कैन डू इट इन योर स्टूडियो इन दिल्ली, बट यू कैन डू इट समवेयर एल्स आल्सो ना। लाइक लेट्स से now we have these, no, I'm very happy ये वाले mics आ गए, बट यू नो कीप अ माइक, like a boom mic, कीप अ माइक हियर, ऐसे वो होना चाहिए बस शो के लिए, क्योंकि ये पॉडकास्ट है। हाँ ये पॉडकास्ट है। मुझे वो शुभम बता रहा था रियल में, कहता हम कॉलर माइक लगाते हैं, वो भी लगाते हैं। हाँ, तो उनके में वो बस शो के लिए है, एंड वहीं पे मैंने देखा तो वो होना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। सो डेफिनेटली भाई अगर तू पॉडकास्ट सोच रहा है, आई थिंक दिस वुड मेक सेंस, बिकॉज दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। इफ आई एम गोइंग टू डू पॉडकास्टिंग, आई एम नॉट गोइंग टू हैव अ केडेंस कि हर हफ्ते में पॉडकास्ट आएगा, ये आएगा वो आएगा, वो तुझे मेंटेन करना पड़ेगा। थीमेटिक, यू आर डूइंग थीमेटिक भाई। हाँ, बंदे से बात करनी है, मेरा मन है, मैं जाऊंगा उससे बात करूंगा, वो करना है मुझे। लाइक इमेजिन डे गेम करते हुए हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक सो मच बेटर डू, यू नो, बंदा सीरियसली दिखा दिया, शो डोंट टेल हो रहा है यहाँ पे, यू नो, बात कर रहे हैं, मे भी एक अप्रोच दिखा दी, नहीं वर्क करी व्हाटएवर, या फिर क्लब में हम या फिर किसी, डू वन थिंग, टॉक टू एन आर्टिस्ट आफ्टर हिज कॉन्सर्ट बैक स्टेज, और डू इट लाइक यू नो कि वो स्टेज पे जाने ही वाला है, टॉक टू हिम एंड एवरीथिंग, हैव लाइक अ पहले वाला, देन हिज परफॉर्मेंस, तू नाच रहा है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स यार पहले 2 मिनट का इंट्रो कितना गजब आएगा, उससे मिला है, स्टेज पे गया है, स्टेज पे उसने परफॉर्म करा है, और तूने भी वीडियोस वगैरह लिए हैं, you had fun, and after that you're like भाई
कमाल ही कर इंटरेस्टिंग दिया। होगा कि अब एंड बैक स्टेज है, तू वहीं पे है। उसकी एलेटेड एनर्जी को मैच करना, हाँ। क्योंकि उसको प्यार मिला है लोगों का, और he's had a horrible concert, whatever, Yeah. right? So now he wants, maybe if he smokes like a cigarette, or to be with someone, Yeah. or to enjoy his fans. अब उस स्टेट में उसको कॉन्वर्सेशनल उस पे फ्रीक्वेंसी मिला, काफी सही अच्छा चैलेंज होगा। हाँ, आई थिंक दैट बी वेरी गुड आल्सो ना। वेरी वेरी सॉलिड आइडियाज भाई, आपने तो बैठे बैठे मुफ्त की ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दी दोस्त कास्ट के ब्रेनस्टॉर्मिंग ऊपर तो ही। हो गई भाई। नहीं, बिकॉज़ सही है ना, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि Sorted. एवरी पीस ऑफ कंटेंट शुड बी ट्रीटेड लाइक इट्स ओन थिंग। Yeah, no, definitely. I am in particular last 10 minutes के अंदर ना, you've definitely changed my mind about how I also view podcasts. I think I view podcasts very episodically, very much like a CID, Yeah. like the show. View it like a movie, dude. It's a movie. Like every podcast is a fucking movie. And I think अगर हम growth हम ध्यान दे नहीं रहे हैं, but I think we talk about growth and we talk about separating those cars from other things. I think ये हो सकता है. You're already separated वैसे. Like you have your own niche, भाई. Anyway, चलो हमें समझ आ गया दोस्त कास्ट की वाइब क्या है और बाकियों से कंपेयर आ गई ना समझ में। भाई हम क्या पानी गिरा दिया, पानी क्यों गिरा रहा है? कहाँ बिजनेस भाई, तेरे साथ आज काफी अनहिंज्ड रिकॉर्डिंग हुई, मजे आए। लेकिन हिंज रिकॉर्डिंग हुई है। हम हिंज रिकॉर्डिंग कब कर रहे हैं? एक अच्छी सी यार, वो मतलब एक तू क्या चाह रहा है? करना है हमें, क्या चाह रहा है? शरीर के अंदर बसना चाह रहा है क्या मेरे? यार आई थिंक this is enough of a start because we covered some very technical points, but हमें we can do it like some other time. I would love to actually, जो तू कह रहा है ना, हम इसको आउटडोर कर सकते हैं, मे बी इन इंडिया, सो दैट पीपल डोंट थिंक कि यार ये तो बाहर ही हो सकता है, या फिर ये यू नो वी शुड डू इट इन इंडिया। इनफील्ड आई एम नॉट गोना बी इन द इनफील्ड ब्रो, भाई, तो इनफील्ड छोड़, वो फिर हम देख लेंगे भाई, हम फिगर आउट कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। जैसे cover, I would honestly love to do something like guys come up with a woman that you've planted in the crowd, or like in the ऐसे मतलब भीड़ के अंदर दो तीन तुम्हारी एक्टर्स हैं, अच्छा, अब इन बंदों को बता रखा है, इनको नहीं पता कि तुम्हारी एक्ट्रेस है, now they have to approach them, and these women are going to be like super hard to like not going to be a normal girl. आई थिंक एक वो शो आया था ना, Sidemen? नहीं, सुपरस्टार बिंदास पे, Superstar? अश्मित पटेल का, उसमें भी लड़कियों उन्होंने प्लांट कर रखी थी ऐसे। क्या बिंदास पे शो था, तो लड़के दो कह रहे कि भाई तुम्हें स्टड कैसे बनाना है, बेसिकली टीचिंग देम हाउ टू टॉक टू गर्ल्स एंड पिक अप, और लड़कियां प्लांट थी, और क्योंकि लाइट वाइट ऑन थी, तुम्हें समझ आ जाएगा, थोड़ा वो था। तो भाई इट वाज गुड कॉन्सेप्ट, मे बी हम भी कर सकते हैं ऐसा कुछ। सोचा था मैंने भी अपने दोस्तों के साथ बैठ के थोड़ा ना, बट देखते हैं। सही है भाई। भाई आपसे दोबारा से राब्ता करके आपके इस अच्छे से मार्लेबोन के फ्लैट में गुफ्तगू करके बहुत आनंद आया, बहुत ही बढ़िया। और आपसे भिन्न भिन्न प्रकार की एंड्रोटेड के ज़माने के अंदर बातें ही पिकअप, सोशल अप्रोच, सोशल क्या क्या पिकअप, सोशल कॉन्फिडेंस, इन सब बातों में मैं तो यह भी बोलता हूँ, देखो गाइस, जो भी बंदे देख रहे हैं, बंदियाँ देख रही हैं, द वर्ल्ड इज अ रॉयस्टर। आपको अगर कोई खूबसूरत लगता है, आप उनको जाके हेलो बोलो, या तो आपको मना करेंगे, आप बोलेंगे मे बी, या फिर आपका टाका बिड़ जाएगा, हो सकता है आपकी शादी हो टाका जाए, बिड़ जाएगा, जो भी हो आपका वो आपका हो जाएगा। इन भाई का आप सपोर्ट ले सकते हो, ये काम करते हैं, हाई टिकट भी है ये भाई। आप हमारा YouTube चैनल देख लो, YouTube चैनल देख लो, आप इनका लिंक हो गया है, बढ़िया इनका और हमारा कोर्स है सिम टू स्टार 2.0। हाँ, कोई सा भी सिम्प अगर है, बाय द वे मैं देखता हूँ खूबसूरत लड़की कोई भी अगर फीमेल गेस्ट बाय चांस लाइक शी इज ब्यूटीफुल और लाइक जस्ट मेयरली प्रिटी, ब्रो, बंदे कहते हैं मैन ऑफ कल्चर, वी नो व्हाट वी आर हियर फॉर, कमेंट्स में, और उस पे लाइक्स होते हैं 200 300 400। ये एक एपिडेमिक है, बंदे इस पे खुश हैं कि हम तो ये देखने आए हैं। बट वो आपका एक रियल नेचर भी तो है। किसका? इट्स टेस्टेड, इफ थंबनेल में लड़कियां होती हैं तो क्लिक ज्यादा आते हैं। अच्छा, लाइक दैट लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक क्लिक करोगे। अब जैसे एक वीडियो है भाई, जैसे तेरे को पता है कौन सी वीडियो है, एथलेटिक्स वाली वीडियोस आती हैं, आई नो व्हाट यू मीन, लड़कियों की लॉन्ग जंप या हाई जंप वाली। हाँ, तू कब बता तूने कितनी बार क्लिक ना करा उस पे? ऑलवेज। और उसमें यूजुअली जो वो हर बार मुझे पता है उसमें कुछ नहीं मिलेगा इतना, और मैंने देखी भी होगी वो कई बार, सेम वीडियो पहली बार, लेकिन वो जितनी बार आती है वो क्लिक होती है भाई। होती है ना, तो उसके नीचे जब लिखा होता है ना मैन ऑफ कल्चर, तो मैं भी लाइक करता हूँ भाई, आए तो हम इसीलिए हैं हम इसीलिए आए हैं। मतलब एक वो 2 पॉइंट है इसमें ना बड़े इंटरेस्टिंग वाले, कि भाई हमें पता है वी कैन गो आउट एंड टॉक टू गर्ल्स, बट हमें ये भी पता हमारा दिमाग है वो साला हरकतें यही करता है, घुसाता हमें वही है। लेकिन और मानता है कि बड़ा क्लियर है भाई, अच्छा है ना। इंस्टाग्राम
बेसिकली सॉफ्टकोर पॉर्न बन चुका है। भाई है, बिल्कुल है। इंस्टाग्राम, टिकटॉक ये सॉफ्टकोर पॉर्न। लॉट ऑफ दिस ओनली फैंस मॉडल्स एंड एवरीथिंग रन देयर बिजनेस, उनका फनल स्टार्ट होता है टिकटॉक। मैं तो देख रहा हूँ भाई आज किस तरह का वो तुझे अनहिंज चाहिए, हम अनहिंज कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, बस बकचोदी चल रही है भाई, और क्या। तो ये थे क्षितिज शेरावत भाई आयरन मैन लाइफस्टाइल के। आप इनको इनकी कौन से सोशल्स पे फॉलो कर सकते हैं? भाई यूट्यूब इज आयरन मैन लाइफस्टाइल, इंस्टाग्राम इज आयरन मैन लाइफस्टाइल, हाँ। और बाकी हमारे कोर्स है यार सिम2स्टार 2.0, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं हाउ टू बी मोर कॉन्फिडेंट। आपको फैशन, ऑनलाइन डेटिंग, टेक्सटिंग, लड़कियों से कैसे बात करनी है, अट्रैक्शन कैसे बढ़ाना है, फनी कैसे होना है, बकचोदी कैसे करनी है, आपको इवन उसमें वॉरियर मंक वर्कशॉप हीलिंग कैसे करनी है अगर आपको बुलिंग वगैरह हुई है, और फैशन के ऊपर, ऑनलाइन डेटिंग के ऊपर पूरी वहाँ पे चीज़ें हैं। आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स हमारा। वो सस्ता भी, हाई टिकट नहीं है। अगर आपको हमसे कोचिंग चाहिए तो आप वो कोर्स ले लेना, उसके बाद एक कॉल बुक कर लेना हमारे साथ, तो आपको हम कोचिंग भी दे देंगे। बट आप डिस्कवर तो कर सकते हैं वहाँ पे, हमारा कोर्स बहुत ही बढ़िया है। तो ये लव गुरु भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, एक अच्छे आदमी भी हैं, जाट भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल ये लंदन के यहाँ निवासी हैं, यहाँ आए हैं, इनके कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं इनसे अब वो माफ़ी चाहूँगा, मैं निकलना चाहूँगा, मेरे को कहीं पहुँचना है। पर इन ब्रदर का बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मेरे पॉडकास्ट पे आए, इन्होंने मुझे ये दिया। और साइड कार पे मिलते हैं फिर। साइड कार पे, हाँ जरूर आएंगे, वहाँ फ्लेम थ्रोअर है मेरे पास एक, लेके आते हैं आग लगाने। सॉरी भाई, थैंक यू सो मच। बहुत सही, बढ़िया।